Welcome to the SAP Web Training Program. This is the third video of the concept of the data object and data type. And we are here talking about the introduction to the structure and internal table. So we have already covered the concept of data object, data type, and we are talking about the internal structure and the internal table. Now, when we talk about the concept of internal table, so what is important, let us just go from the preview of it back, and here let us start with. So when we talk about the internal table, the internal table is from the structures. When I said the structure is there, structure is we define one type of structure in the database, and that database structure we can have different, and the content is different over here, and here there's a content different, here we have got another content, like that. So the object is defined in the combination of object from a structure. It can be flat structure, it can be nested structure, it can be like inside a structure, if there is another structure is there, then it can be a nested structure, and again it can be a deep nested structure. So in a structure, like all these things, why we are learning is we would like to take the data from the database, not all the data, like the data what we needed, required. We'd like to take the data from the database according to our requirement. So if the data in a database are like with field 1 and field 1, field 2, field 3 and field n are there, I would like to take only the data like field 1 to field 2, field 3 I would like to take. So I define my what is the data I require. I define my structure. It may be flat structure, deep structure or nested structure, deep nested structure. And I define my what are the fields is required. So that is called the work area. This is the work area where I define the fields. Individually, we can have a table row or table entries that is there. So out of these fields, so field 1, field 3, field 7, field 10. So I am interested on these fields only. So in these fields will be called as line type. Line type means in this line, what are the fields required? My defined field that was called line type. जो मेरे defined fields हैं, वो line type में जाएंगे. And in one of the field, if I have an employee code or the name, suppose one of the field I have got employee code, तो ये जो employee code हो गया वो हो गया table key. So table key आप define कर सकते हो, primary key हो गया और secondary 15 different secondary key भी आप define कर सकते हो. पर keys जब आप define करोगे कोशिश कीजिएगा कि वो keys multiple time repeat ना हो. तो name multiple time repeat हो सकता है पर employee code मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं होता है. एम्प्लॉय कोड यूनिक ही होता है. So we can have a standard key or a user defined key. That is also possible. Now in a table that look like this, in table you have a header line. तो ये header line हो गया same name as internal table. So header line usually is there in the table, and in OOPS header line is not required, not used. So only work area is defined. So table कितने types के होते हैं? एक है standard table, दूसरा हो गया sorted table, sorted table, another is horse table. तो ये जो table है, जैसे Excel sheet हम देखते हैं ना, Excel sheet, so वहाँ पर जैसे table हो गया तो उससे पहले क्या होता है ना, index number होता है. I got a picture of here. जैसे हम लोग फील्ड डिफाइन किए तो ये हो गया अपना लाइन टाइप और ये टेबल टाइप, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. कीज वी हैव ऑल डिस्कस, इसमें से कौन सा की हो सकता है. तो ये कीज भी वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे फील्ड कीज फील्ड 1 हो सकता है, फील्ड 2 हो सकता है, या फिर एनीथिंग व्हिच इज यूनिक. वी कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फील्ड एज अ की. तो की फील्ड 1 फील्ड 2 मिलाकर, मतलब ऐसे फील्ड 1 फील्ड 2 वो कॉम्बिनेशन कहीं पर और नहीं होंगे. अभी हम टेबल टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं. टेबल टाइप में दो कोई भी एक टेबल होता है वो लुक लाइक दिस, एंड देयर वी हैव इंडेक्स नंबर व्हिच इज देयर ऑलरेडी इन एवरी टेबल. हिडन लाइक इंडेक्स नंबर इज देयर फॉर 1 2 3 4. तो कैसे हम यूज करते हैं एक्सेल सीट, वहां पर इंडेक्स नंबर ऑलरेडी देयर
फर्स्ट लाइन में होता है ना 1 2 3 4 5 6। तो जैसे हम कोई नंबर को डिलीट कर देते हैं, किसी कॉलम किसी रो को डिलीट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये इंडेक्स नंबर एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट है, वन इज इंडेक्स नंबर, अनदर इज की। टेबल में, किसी भी टेबल में इंडेक्स नंबर और की बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, क्योंकि इसी से हम ढूंढ सकते हैं, इसी से हम अपना जो भी रिक्वायरमेंट है टेबल में या मल्टीप्लिकेशन है, जैसे आप वेंडर परचेज ऑर्डर लेते हो, तो परचेज ऑर्डर में आप उसको सारे डेटा को जो परचेज ऑर्डर जो आपके वेंडर्स हैं जो अप्लाई किए हैं, तो उनका आप एक्सेल शीट में एक एक रो में रिकॉर्ड रख सकते हैं और उस हिसाब से आप उनको सीक्वेंशियली अरेंज कर सकते हैं या फिर उसको शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो आपका इंटरनल टेबल उसी हिसाब से क्या हो सकता है, ये कि स्टैंडर्ड टेबल हो सकता है या फिर शॉर्टेड टेबल। आप कोई भी नंबर्स हैं, आप उन नंबर्स को सीरियल ऑर्डर में, असेंडिंग या ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सॉर्टेड ऑर्डर लेफ्ट टू राइट होता है, यानी आप पहले जो लाइन है फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आप उसको शॉर्ट किया, अगर आप इन दोनों को मिलाकर शॉर्ट कर रहे हो तो पहले वाले को शॉर्ट करता है, फिर उसके हिसाब से पहले में जो शॉर्ट है दूसरा को उसके हिसाब से शॉर्ट करता है। ठीक है, तो आपका ये शॉर्टिंग होता है, पहले लेफ्ट वाला शॉर्ट होता है, उसके बाद उसके राइट वाला जो होता है उसके हिसाब से शॉर्ट हो सकता है। तो ये आपका शॉर्टेड टेबल में गया। हाश टेबल में ना तो स्टैंडर्ड या शॉर्ट कुछ नहीं होता, यहाँ पर हाश टेबल होता है कि यहाँ पर इंडेक्स ही नहीं होता, हाश टेबल में आपका इंडेक्स ही नहीं होता। तो हाश टेबल में की ऐसी होता है, तो यूनिक की होना जरूरी है हाश टेबल में। स्टैंडर्ड टेबल हो गया आपका ऑर्डिनरी एक्सेल सीट, जहां पर आपका इंडेक्स नंबर और की डेफिनेटली है। अभी की क्या है, नॉन यूनिक हो सकता है और यूनिक की भी हो सकता है। यूनिक की का कॉमन सेंस की बात है कि यूनिक मतलब ये अलग, ये इसके जैसा और कोई नहीं, जैसे एम्प्लॉय कोड, ये दो कॉम्बिनेशन के नहीं होंगे। नॉन यूनिक कीज होंगे कि जैसे आप दो नेम है, नेम कॉमन हो सकता है, या फिर जैसे आईजेटी सर और एक स्टूडेंट, तो सीडी सेम स्टूडेंट नेम कैन बी अ कॉमन। सो अगर हम नेम को कीवर्ड लेते हैं तो उनके यू कैन हैव अ कॉमन कीवर्ड, सो दैट कैन नॉट बी यूनिक। सो वो कॉम्बिनेशन ऑफ जब हम की यूज करते हैं, जैसे नेम हो गया और कॉलेज हो गया, तो वहां पर ये नॉन यूनिक कीज एग्जिस्ट करते हैं। तो शॉर्टेड स्टैंडर्ड टेबल में all these things are there in the table, that is why it is called a linear search, यानी वो एक रो में भी sequential सर्च करते करते जाता है। शॉर्टेड टेबल में बाइनरी सर्च होता है, because already we can have shorted out, so binary search is there, so it is on fastest, so index numbers are already there, so वो index को यूज करके बाइनरी सर्च करता है and it sorted out very quickly। hash table doesn't have an index, तो एक hash algorithm यूज करता है। हैश एल्गोरिथम में सपोज आप सर्च कर रहे हो एक नंबर फ्रॉम 1 to 50, सो 1 to up to 50, 51 up to 100 इज देयर। सो एक नंबर सपोज आप सर्च करो 37, सो ये क्या करता है 1 to 50 और पहले उसको हाफ कर लेता है, हाफ टेबल है ना, तो 1 to 50 के अंदर 37 जाता है, फिर इसको भी हाफ कर लेगा, तो यहाँ पर हो गया अप टू 25, यहाँ से हो गया 26 से 50, वो देखता है ये 26 की 50 के अंदर है, 26 फिर उसको भी हाफ में कर दिया, वैसे करके वो 37 को फाइंड आउट करता है। तो हाश टेबल इज वेरी क्विक टू फाइंड आउट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर 50 rows, remember we are talking about 5000 rows or maybe 10,000, maybe 1 million row, 1 million records। So if you think about collecting a database from a 1 million record, then you cannot think about just an Excel sheet. You need to have this type of arrangement. That is why ABAP need to develop a program for this complexity. तो प्राइमरी कीज भी यूज हो सकते हैं या फिर 15 सेकेंडरी कीज भी यूज हो सकते हैं। इफ अगर आपके पास जैसे की को बोला जाता है कि कोई भी नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स को आप कीज मत यूज कीजिए, आप यूज करना है तो कोई भी अल्फा न्यूमेरिक और कैरेक्टर टाइप that can be used as a key, because numbers it can vary. A numeric key it is okay. So if there is no key is available, so there can be option like empty key. So empty key is also there. So assist mode of the table. That another thing is unique that we discussed. Another is called non-unique. Non-unique matlab we can have a common data in the single
field. So we can have a like lot of common data are available. Common data मतलब same name हो सकते हैं. So we can say that non-unique, the data are non-unique. So access mode of table type को हम कैसे access कर सकते हैं? जैसे हम 3 table type पढ़े, sorted, standard, sorted and hash table. तो index table एक जो हो सकता है, index table is a combination of standard table and sorted table. अगर मैं नॉट स्पेसिफाई करूं, मतलब कोई भी स्पेसिफाई नहीं करूं, तो ये इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है. तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंस एस फ्लाइट है. ये हो गया एसएपी एबैप में. इफ यू गो टू द टेबल, तो एस फ्लाइट एक टेबल है. SFLIGHT ये एक टेबल है. इस टेबल में क्या होता है ना, तो जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम बताए थे, एक स्ट्रक्चर में हम जितने फील्ड्स होते हैं, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, तो मैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बताए. तो ये स्ट्रक्चर के अंदर जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स को बोलेंगे कंपोनेंट्स. इन फील्ड्स को बोलेंगे कंपोनेंट्स. एंड दीज कंपोनेंट्स आर केप्ट लाइक दिस. यहाँ पर वो टेबल नहीं दिख रहा, यहाँ पर एक टेबल का जो स्ट्रक्चर बना है, उस फील्ड्स, क्या क्या फील्ड्स है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके there are 14 fields are there. जो आप एक रो में देख रहे थे, यहाँ पर एक कॉलम में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे फील्ड लिखे हैं. MANDT, CARRID. ये एस फ्लाइट की जो फ्लाइट होता है, उसमें कौन सा फ्लाइट यूज किया जाता है, उस फ्लाइट का नाम क्या है और कौन सा सिस्टम है. जैसे हमारा ये 800 इज ए क्लाइंट आईडी, तो हम MANDT 800 स्टोर किया. कैरिड हो गया, कॉनिट हो गया, फ्लाइट डेट हो गया, उसका प्राइस हो गया, कौन सा करेंसी यूज हो रहा है, और प्लेन का टाइप क्या है, मैक्सिमम सीट क्या है. ऑल दीज थिंग्स आर देयर. दीज आर द डिफरेंट फील्ड्स. सो 14 फील्ड, वन एग्जांपल यू हैव सीन. तो इनसाइड द फील्ड यू हैव द फील्ड, व्हाट इज अ डेटा एलिमेंट, मतलब वो कौन से टाइप से बिलोंग करता है. जैसे मैंडेट हो गया, वो एस मैंडेट हो गया. कैरिड, ये एस कैरिड आईडी हो गया, तो ये क्या हो गया, कैरेक्टर टाइप हो गया. तो ये कैरेक्टर टाइप डिफाइन जो है, हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. जैसे एयरलाइन कोड हो गया. जैसे फ्लाइट कनेक्शन नंबर क्या है, इसका टाइप क्या है, S_CON_ID. तो ये हो गया इसका फील्ड का नेम. ये हो गया आपका डेटा एलिमेंट. ये क्योंकि एसएपी एबैप के अंदर है, इसलिए ये ऐसा है. अदरवाइज आपको जो यूज करेंगे, आप डेटा एलिमेंट को जेड के स्टार्ट करेंगे, जेड S_name, या फिर कोई लिखा जेड नेम. This can also be field type, this can also be field type. तो यहाँ पर ये हो गए आपके field data elements और ये हो गए different fields. तो अभी हम जैसे उस फ्लाइट के, एस फ्लाइट के अंदर से जाते हैं, तो उस फ्लाइट के अंदर मैंडेट में आपका जैसे सिस्टम आईडी, क्लाइंट नंबर हो गया, कैरिड हो गया आपका जो एरोप्लेन, देन ये आपका नंबर, ये फ्लाइट डेट, ये हो गया प्राइस, करेंसी, ये आपके जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हुए. यहाँ पर आपके रिकॉर्ड्स एंट्री हो गए और यहाँ पर डिफरेंट फील्ड दिखाएंगे. यहाँ पर जो फील्ड आप रो में देख रहे हैं, this field is actually displayed in this background column. So here S flight is a table where all the fields are mentioned. तो यहाँ पर टेबल हम एबैप डेटा डिक्शनरी में जा सकते हैं. इनिशियल स्क्रीन, यहाँ पर हम डेटा डिक्शनरी का इनिशियल स्क्रीन है, जहाँ पर हम टेबल टाइप यहाँ कर सकते हैं. ये SAP SE11 डेटा डिक्शनरी का जो कोड है, ट्रांजैक्शन कोड, यहाँ पर आप S फ्लाइट लिखे और यू कैन हैव अ डिस्प्ले. आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से क्रिएट है, आप चेंज भी नहीं कर सकते. और यहाँ पर सपोज एक प्रोग्राम हो गया, तो यहाँ इस प्रोग्राम के द्वारा आप इस इंटरनल डेटा को आप इस, मतलब यहाँ जो फील्ड है, यहाँ से कुछ फील्ड को आप सिलेक्ट किए. जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया कैरिड, कॉनिट, एफ फ्लाइट. सो एफ फ्लाइट को सिलेक्ट किया, कैरिड को सिलेक्ट किया और कॉनिट को सिलेक्ट किया. ये 3 मैंने सिलेक्ट किया, तो ये हो गया मेरा लाइन टाइप, मैंने जो डिसाइड सिलेक्ट किया है. तो इस हिसाब से आप प्रोग्राम कर सकते हैं. एंड यू कैन सिलेक्ट डेटा आल्सो. एंड देखो यहाँ पर डेटा, जैसे LVS फ्लाइट को मैंने सिर्फ टाइप TYS फ्लाइट किया, तो ये जो मैंने टाइप डिसाइड किया था 3, और ये डेटा हो गया, डेटा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया और डेटा टाइप ऑलरेडी क्रिएट किया था, उसको बस टाइप लिखने से, डेटा का कीवर्ड यूज करने से, सो वी कैन क्रिएट अ डेटा ऑब्जेक्ट आल्सो डायरेक्टली ऑफ द सेम टाइप. So this is the same example, and this is the like S flight हो गया, उसका attributes देखते हैं. तो attributes will look like this: data model which is updated on this date, and delivery and maintenance. Here it is an application table, and so thank you very much.